Dear students of class 11th, Assalamu alaikum. As you know, we are discussing elastic collision in one dimension, and for that we have derived the relations for the velocities after collision. That is, v1 is equal to m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into u1 plus twice m2 u2 divided by m1 plus m2. And your velocity v2, that is the velocity of the second body after collision, it is twice m1 u1 divided by m1 plus m2 plus m2 minus m1 into u2 divided by m1 plus m2. तो इससे पहले हमने एक केस डिस्कस किया था व्हेन बोथ द बॉडीज आर ऑफ इक्वल मास। तब हमने ये प्रूव किया था कि दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज और दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। दैट इज, फर्स्ट बॉडी will move with the velocity of second body and second body will move with the velocity of first body. तो आज का स्पेशल केस सेकंड है। इफ m1 is equal to m2, that is the body is having the same mass, and u2 is equal to 0, that is second body is at rest, body B is at rest. So first body is moving with velocity u1 and second body is at rest. When they collide with each other, what will happen to them? तो हम ये कंडीशन अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे आपका है m1 is equal to m2, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे m2 के बदले में m डाल देंगे, तो u2 के बदले में 0 डाल देंगे, सो v1 will become a 0. That means the body A will come to the rest. Body A after collision it will come to the rest. So second velocity, that is v2 is equal to twice m into u1 divided by twice m plus ये वाली टर्म आपकी 0 बन जाएगी. So you will get v2 is equal to u1. तो सिंपल सी बात है। तो आपको याद रखना होगा, जो सेकेंड बॉडी जो पहले रेस्ट में थी अब वो मूव कर लेगी विद द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी, और जो फर्स्ट बॉडी है दैट विल कम टू द रेस्ट। ठीक है। सो इन दिस केस वी कैन से दे इंटरचेंज दियर वेलोसिटीज। पहली बॉडी रेस्ट में आएगी, सेकेंड बॉडी चलना शुरू करेगी विद द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ द फर्स्ट, राइट। तो सेकेंड केस, इसी का सेकेंड केस आपका है when m1 is greater than m2. So A body is heavy and B body is light. So heavy body and a lighter body, but lighter body is at rest and heavy body is in motion, moving with velocity u1. तो यहाँ पे हम एक काम कर लेंगे, here m2 is neglected. m2 is neglected. Being lighter, it is neglected. तो जब हम यहाँ पे m2 नेगलेक्ट कर लेंगे तो आपकी रिलेशन होगी m1 डिवाइडेड बाई m1 मल्टीप्लाइड बाई u1। m2 यहाँ पे भी नेगलेक्ट किया, यहाँ पे भी नेगलेक्ट किया, तो यहाँ पे m2 को नेगलेक्ट कर लेंगे तो ये पूरी टर्म नेगलेक्ट हो जाएगी। तो ये रिलेशन आपकी बन जाती है v1 इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई m1 इंटू u1। सो एम्प्लाइज v1 is equal to u1. That means there will be no change in the velocity. No change in the velocity. ऐसा समझ लीजिए, कंसिडर कीजिए। तो एक ट्रक आ रही है जो एक कार को टक्कर मार रही है, दैट कोलाइड्स विद इट। कार रेस्ट में थी, तो जो ट्रक है हैवी बॉडी है, तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगी। बट व्हाट विल हैपन टू द वेलोसिटी ऑफ द कार, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। सो v2 इज इक्वल टू, यहाँ पे m1 डिवाइडेड बाई m1, दैट इज ट्वाइस m1 u1 डिवाइडेड बाई m2 को नेगलेक्ट कर लेंगे, सो इट इज m1, राइट। m1 और m1 कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बिकम ट्वाइस u1। तो मान लीजिए हैवी बॉडी व्हेन इट कोलाइड्स विद द लाइट बॉडी which was initially at rest, that will begin to move with a velocity twice that of the first body, twice that of the first body. So heavy body or massive body when collides with the light body at rest, तो practically क्या होता है, there is no change in the velocity of the heavy body, but the light body will begin to move with a velocity twice that of the heavy body, twice that of the heavy body. So हम ये पॉइंट लिख के रखेंगे, when a heavy body collides with light body,
at a rest, तब क्या होगा? There will be no change in the velocity of heavy body, but the light body will begin to move with a velocity twice that of heavy body. तो मान लीजिए अगर heavy body is moving with a velocity of 20 kilometers per hour and it strikes with a light body at rest. So after collision, what will happen? This will continue to move with a velocity of 20 kilometers per hour, but this will move with a velocity of 40 kilometers per hour, right? तो इस तरह ये हमारा केस था when a heavy body collides with a light body at a rest. अगला केस इसका होगा when a light body collides with a heavy body at rest. थर्ड केस आपका है if m2 is greater than m1, that is m1 is neglected. तो यहाँ पे आपका u2 is equal to 0 again and first body is moving with velocity u1. अब heavy body को हम rest में लेंगे. Light body is moving with velocity u1. This is moving with this is at rest, right? अब ये इसके साथ collide कर लेगी. What will happen to the heavy body and what will happen to the light body? यहाँ पे हम m1 को neglect कर लेते हैं being light. ये मास है m2. तो आफ्टर कोलिजन पहले हम मैथमेटिकल रिलेशन को डिराइव कर लेंगे. सो v1 इज इक्वल टू किसको नेग्लेक्ट करेंगे? यहाँ पे m1 को. तो यहाँ पे आपका होगा माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 को नेग्लेक्ट कीजिए m2, ये आपका u1 होगा प्लस ट्वाइस m2 u2, ये तो जीरो बन जाएगा बिकॉज u2 इज इक्वल टू 0. m2 और m2 कैंसिल हो जाएगा. सो v1 मीन्स इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विल बी माइनस u1. तो सेम वेलोसिटी इसकी रहेगी लेकिन ये रिबाउंड हो जाएगी इन अपोजिट डायरेक्शन. v2 को कैलकुलेट कर लेंगे. यहाँ पे m1 को नेग्लेक्ट करेंगे तो टर्म कैंसिल हो जाएगी. यहाँ पे m1 को, सो यू विल गेट हियर m2 divided by m2 or u2, but u2 is equal to 0. ये टर्म भी 0 होगी, ये टर्म भी 0 होगी. so implies v2 is equal to 0. that means the second body, which is heavy body, it will continue to remain at rest and the first body after collision will get a rebound. So first body or heavy body, not first body, it is heavy body will continue to remain at rest, but light body will get a rebound with the same velocity. तो मान लीजिए ट्रक है
कार टकरा जाती है, ये रिबाउंड होगी विद द सेम वेलोसिटी and there will be no change in the velocity of the heavy body that is stuck if we have considered, right? So these were the special cases in case of an elastic collision in one dimensions. तो इसके बाद हम इन elastic collision को डिस्कस कर लेंगे. इन elastic collision, तो हम आज इसमें परफेक्टली इन elastic collision in one dimension डिस्कस कर देंगे. इससे पहले भी हमने ये डिस्कस किया है. इन elastic collision, परफेक्टली इन elastic collision वो collision होता है जिसमें टू बॉडी stick to each other and move with a common velocity. तो एक बॉडी आप लीजिए जिसका मास m1 है, मूविंग विद वेलोसिटी u1. दूसरी बॉडी आपकी m2 मूविंग विद वेलोसिटी u2, where u1 is greater than u2, and when they collide with each other, this is m1 and this is m2, they move with a common velocity v. That means they stick to each other and move with a common velocity v, right? तो इस तरह के कोलिजन को हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन. तो ज़्यादा आसानी के लिए हम यहाँ पे दोनों को मोशन में नहीं लेंगे. लेट दिस बॉडी इज एट रेस्ट, तो आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में. सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट और बी बॉडी इज एट रेस्ट. A body is moving with velocity u1. When they collide with each other, they stick to each other and move with a common velocity v, right? तो इसी तरह का प्रोसीजर हम फॉलो कर लेंगे. Momentum always remains constant or conserved, but the kinetic energy doesn't remain conserved. तो अगर हम इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे देख लेंगे, ए बॉडी का मोमेंटम m1 u1 होगा, बी बॉडी का मोमेंटम 0 होगा. तो टोटल मोमेंटम बन जाता है m1 u1. तो आफ्टर कोलिजन जो इसका मोमेंटम होगा दैट इज m1 प्लस m2 इंटू वी. तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन जाती है व्हेन मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड. सो इट इज m1 u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 टोटल मास ऑफ द टू बॉडीज इंटू वी. ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, राइट? इसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, बट दैट डजंट रिमेन कंजर्व्ड. तो बिफोर कोलिजन हम देख लेंगे व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी. इसकी काइनेटिक एनर्जी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बिकॉज u2 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज 1/2 ऑफ m1 u1 स्क्वायर. दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन. तो आफ्टर कोलिजन देख लीजिए, वो एनर्जी होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ब्रैकेट में लिखिए, यहाँ पे आई लिखिए, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. तो काइनेटिक एनर्जी आप यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी. That will be 1/2 of m1 plus m2 into v square, because v square is the common velocity. तो क्या काम करेंगे हम, इन दो का रेशो कैलकुलेट करेंगे. काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू, फाइनल में आपका है 1/2 ऑफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 ऑफ m1 u1 स्क्वायर. 1/2 ऑफ m1 u1 स्क्वायर. तो यहाँ पे 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा. सो यू विल गेट हियर m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर
डिवाइडेड बाय m1 u1 स्क्वायर, राइट। तो अगर हम पहली इक्वेशन को यूज कर लेंगे, व्हाट वी विल गेट, पहली इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, v का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, उस v का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट v इज इक्वल टू m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। इसको हम यहाँ पे डाल देंगे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल, ये आपका होगा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 u1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे v का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। m1 एक m1 कैंसिल हो जाएगा, u1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल गेट हियर, ये और एक कैंसिल हो जाएगा, m1 प्लस m2 m1 प्लस m2, m1 एक कैंसिल होगा, u1 स्क्वायर कैंसिल होगा, तो आपका होगा यहाँ पे m1 डिवाइडेड बाय, इसमें एक बचेगा, दैट इज m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। सो यह काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो बाय क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन वी गेट kinetic energy final is equal to m1 divided by m1 plus m2 into kinetic energy initial। तो अगर हम इस फैक्टर की बात करेंगे, m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, क्या ये ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1? डिनोमिनेटर आपका जो है m1 प्लस m2 ग्रेटर है, न्यूमरेटर स्मॉलर है, सो इट विल बी लेस देन 1, लेस देन 1 implies kinetic energy final is less than kinetic energy initial. So definitely there will be the loss of the energy, final kinetic energy is smaller than the initial kinetic energy, so there will be loss of kinetic energy. So this type of collision is known as inelastic collision. अब तो हम यहाँ कैलकुलेशन कर लेंगे कितना लॉस होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, राइट। सो वी विल गेट हियर लॉस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बदले में ये एक्सप्रेशन डाल देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यहाँ पे डाल देंगे काइनेटिक एनर्जी क्या है इसके साथ, इनिशियल। तो ये वाली इक्वेशन आपकी बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाहर निकालिए, सो इट इज 1 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसकी क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन कीजिए, दैट इज m1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के लिए आपके पास वैल्यू है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन,
that is 1/2 of m1 u1 square. m1 और m1 कैंसिल हो जाएगा, so we will get loss here. पहले 1/2 m1 और यहाँ पे बचता है m2, m1 m2 divided by m1 plus m2, m1 plus m2, and that is equal to u1 square. So this is the loss in the kinetic energy, but the total energy remains conserved, right? तो ये loss कहाँ पे जाता है? So it gets converted into heat and sound energy, right? So this is simple expression for the perfectly inelastic collision in one dimensions. तो इसी के साथ ऑलमोस्ट आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाता है, वर्क, पावर एंड एनर्जी. तो इंशाल्लाह सोच के देख लेंगे कि कौन सा नया यूनिट आपके साथ डिस्कस कर लेंगे. थैंक्स.